Now let's learn the techniques to tackle the questions on bright and dark bands. What are the possibilities? What are the twists and turns they will give in the question, and how do you come to your analysis within a span of 1 minute? Let us do that. Interference means light is coming definitely from two different sources. So here on, wherever you read any question, you should always have this diagram scrolling in your mind always. Two sources, S1 and S2. We know these two sources are coherent, monochromatic. Monochromatic means there is only one single wavelength. Coherent means they have constant phase difference or zero phase difference. That means they are derived from the same source. They are very close to each other. Small d is very small and capital D is very large. Easy to remember. Small d is small in value, capital D is और big D is big in value. So ये होता है आपका मिलीमीटर या सेंटीमीटर में, और ये होता है करीबन 1 मीटर के आसपास. This I am talking about the setup of YDSE, Young's Double Slit Experiment. So YDSE का ये setup है. एक ही wavelength के दो waves यहाँ पे आके मिल रहे हैं at point P. Then on the screen, what you are going to get is somewhat of this type. This is called as SIP, as we have discussed earlier. Steady interference pattern, the center of which you have a bright band or bright fringe. वो पैच है इसलिए उसको हम लोग फ्रिंज बोलते हैं. So this central bright fringe CBF is numbered as 0. अच्छा, now all these bands, अच्छा, after this 0, these bands, they are present like mirror image. You can see after 0th bright band, it is the first dark band. Then first bright, second dark, second bright, third dark, third bright, and so on. Now whatever is the position and the numbering here at the top, उसका mirror image आपको नीचे की तरफ मिलेगा. तो वैसा ही D1, B1, D2, B2, D3, B3 and so on. So ये सारे points जो है, इन points पे क्या हो रहा है? At every point you have this kind of a meeting, students. You have these two waves meeting at each of these points, and depending on how do they meet, in the same phase or opposite phase, we have discussed the points will be bright or dark. Now let us quickly find the parameters associated with this bright and dark band and the techniques. The resultant amplitude at this point, at any of these points rather, or any in between point as well, it is given by this formula. In this formula, if A1 is equal to A2 is equal to A, मतलब दोनों sources के amplitudes, मतलब intensities, मतलब brightness अगर same है, जो कि रहेगा most of the times आपका case, we take both the sources of equal amplitudes as discussed. So if A1 is equal to A2 is equal to A, say, then on solving this you get 2A cos phi by 2. From this resultant amplitude we get the resultant intensity I dash. मैंने resultant intensity को I dash ये नाम दिया है. So I dash will be this from this formula. कैसे? आप इसको square करो. We know यहाँ पे r square हो जाएगा, ये root हट जाएगा. You have a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. Now I is proportional to a square. From that if you substitute a1 square की जगह पे आपका i1 आएगा, a2 square की जगगह पे आपका i2 आएगा, a1 के लिए root i1, a2 के लिए root i2 and r square के लिए i dash. मतलब जहाँ पे भी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है उसकी जगह पे हम लोग उसका रिस्पेक्टिव और करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, और जहाँ पे स्क्वायर नहीं है एम्पलीट्यूड का वहाँ पे फिर इंटेंसिटी का रूट आ जाएगा. Okay? Now again, if intensities are same, I1 is equal to I2 is equal to I, say, and if you solve this, you get 4a cos square phi by 2. Acha, in this, one very important factor is this, 2 root I1 I2 cos phi. Remember students, this factor is called as interference factor. Remember, rather note down this interference factor, 2 root I1 I2 cos phi. Because of the coherent sources, this term appears here. क्योंकि अगर sources आपका coherent नहीं है, मतलब incoherent sources है, that means they are obtained from two different sources here. S1, S2 दोनों original same source से obtain नहीं किया गया है. S1 एक अलग source है, S2 एक अलग source है. तो ये cos phi आपका वहाँ पे zero होता है. Cos phi is zero. That is, the interference is obtained from two incoherent sources. Now for incoherent surface, remember cos phi is always 0 because phi represents phase difference. Now incoherent means they don't have same phase difference. So when their phase difference
differs, then what we do is we take average of all the cos phi, and average of cos phi is always 0. That you must have learned. Even in integration you must have learned this. So cos phi is 0. Average cos phi is 0 for two incoherent sources. तो इसलिए इनकोहेरेंट सोर्सेज के टाइम पे ना ये टर्म, ये तीसरा रेड में जो आउटलाइन किया है, ये आता ही नहीं है. सो फॉर इनकोहेरेंट सोर्सेज interference, if it is taking place, then the resultant intensity is simply I1 plus I2. There is no third term, students. Okay, so intensity is simply I1 plus I2 for two incoherent sources. तो यहाँ पे भी ये फैक्टर नहीं आएगा if for incoherent sources. ये हम लोग कोहेरेंट का बात कर रहे हैं. See what I am telling you is those twists and turns. आपको बेसिक्स पता है, आपने बोर्ड्स में काफी अच्छा पढ़ाई किया, लेकिन ये छोटे छोटे वर्ड्स या ट्विस्ट एंड टर्न्स की वजह से आपका क्वेश्चन आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए. So 2 root I1 I2 cos phi is interference factor. It is appearing only for coherent sources. When there are incoherent sources, this third factor is 0. So resultant intensity is just I1 plus I2. Resultant amplitude is just root of A1 square plus A2 square. Now let's talk about coherent sources and continue the same discussion. So Imax, we know addition of amplitudes का square. I mean is this. अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूँ, Imax मतलब क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ब्राइट बैंड जैसे अभी डिस्कस किया था कि दोनों वेव सेम फेज में मिलेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ द एम्पलीट्यूड्स का स्क्वायर. अच्छा, A1 A2 सेम रहेगा स्टूडेंट्स, तो A और A 2A का स्क्वायर माने 4A स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा. सो I min विल बी 0, मतलब डार्क बैंड विल बी परफेक्टली डार्क व्हेन A1 is equal to A2 is equal to A, माने सेम रहेगा. अगर इन दोनों का रेशियो लेते तो ये आता है. So it is R plus 1 upon R minus 1 the whole square, where what is R? If you divide these two RHS, then R is A1 upon A2. R is for ratio, R ratio A1 by A2. Okay, so Imax upon I min is this, where R is A1 by A2. Now from this, if I extend it further, a tricky question asked on fringe visibility is V, which is Imax minus I min upon Imax plus I min. तो क्या करना है, इसी को डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो करना है. यू कैन सॉल्व दैट एंड यू गेट दिस फॉर्मूला. तो आप इसको जब भी सॉल्व करोगे डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो से, तो आपको 2 root I1 I2 upon I1 plus I2 ये फॉर्मूला मिलेगा फ्रिंज विजिबिलिटी का. इसके दो कंडीशंस हैं. पहला, जब भी I min आपका 0 रहेगा. अगर आपका I min 0 है तो क्या होगा, V will be Imax upon Imax. ये तो 0 हो गया, दोनों 0 तो सेकेंड टर्म गया. Imax upon Imax मतलब 1 आएगा. So fringe visibility is V is equal to 1 when I min is 0. And second condition is when Imax is 0. अगर Imax आपका 0 है, okay, then I min upon I min minus plus, इसका रेशियो क्या आएगा, -1. ये आपका रेशियो यहाँ पे आएगा. So fringe visibility can be calculated in these two ways for special cases. So this is our first part discussed. अभी ये सब जो डिस्कशन किया कि ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, तो वो स्क्रीन पे आपको ऐसे मिलेगा, ऑल्टरनेट रेगुलर मिलेगा. सेंटर में CBF रहेगा, हमेशा ब्राइट ही रहेगा सेंटर बैंड आपका, बिकॉज S1 S2 से जो दो वेव्स जाएंगे यहाँ पे, उन्होंने ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस इस पॉइंट तक सेम रहेगा, इसीलिए पाथ डिफरेंस उस पॉइंट तक का सेम ही आएगा. इसीलिए व्हेन two waves from S1 and S2 meet at this central point, they will always be meeting in same phase. क्योंकि जितना डिस्टेंस एक ने ट्रेवल किया उतना ही दूसरे ने ट्रेवल किया, इसीलिए जहां पे एक का क्रस्ट आएगा दूसरे का भी क्रस्ट ही आएगा, या फिर एक का ट्रफ तो दूसरे का भी ट्रफ, मतलब दोनों वेव्स उस इक्विडिस्टेंट पॉइंट पे सेम फेज में ही मिलेंगे हमेशा. इसलिए ये सेंट्रल पॉइंट हमेशा ऑलवेज ब्राइट होता है और उसका नंबर क्या होता है, 0. Now, as I told you, you have to always bear this diagram in your mind. S1 S2 separated by distance d, screen at a distance capital D. Distance of this bright or dark band, ये जो भी है, इस हर एक का डिस्टेंस या तो आप xn से लिखोगे या xn डैश से लिखोगे. xn कभी आएगा स्टूडेंट्स, when there is a bright band. xn डैश कभी आएगा स्टूडेंट्स, when there is a dark band. इस पॉइंट पे जो बैंड मिलेगा वो ब्राइट है या डार्क है, वो डिपेंड करेगा उस पॉइंट तक आने वाले दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस कितना है. अब ये पाथ डिफरेंस हम लोग कितने अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, वहां से कुछ एक ट्रिकी क्वेश्चन कैसे आएगा देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल, पाथ डिफरेंस ब्राइट बैंड्स के लिए होता है n लैम्ब. n इज अ होल नंबर, इवन ऑड डोंट केयर.
ओके आपके दिमाग में कहीं ना कहीं भी ये फिट हो गया कि ब्राइट बैंड मतलब वो इवन मल्टीपल, दैट्स राइट, बट वो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्ब बाय 2 है। मैं यहाँ पे कहीं पे भी लैम्ब बाय 2 का मल्टीपल आपको नहीं ले रहा हूँ। ओके आई एम कीपिंग इट वेरी वेरी सिंपल। सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्ब, तो उसमें इवन ऑड का फर्क नहीं पड़ता है, मतलब 93 लैम्ब, 49 लैम्ब, 64 लैम्ब, इवन ऑड कुछ भी रहेगा, एज लॉन्ग एज इट्स अ होल नंबर इट विल बी अ ब्राइट बैंड। ये जो दो वेव्स यहाँ पे आ रही है इस पॉइंट पे, इन दोनों वेव्स के बीच का पाथ का डिफरेंस अगर है लेट्स से 93 लैम्ब, तो ये पॉइंट ब्राइट रहेगा। अभी 93 लैम्ब का मतलब क्या है एग्जैक्टली, पाथ डिफरेंस 93 लैम्ब का मतलब है, देखो S1P छोटा है, S2P बड़ा है। कंसीडर S1 से लेकर P तक 100 वेव्स जा रहा है, कितना 100 S2 से लेकर P तक 193 वेव्स जा रहा है। सो S1P ये डिस्टेंस कितना हुआ 100 वेव्स, सो 100 लैम्ब, एक वेव लैम्ब होता है तो 100 वेव्स 100 लैम्ब। S2P ये डिस्टेंस कितना हुआ 193 लैम्ब, तो S1P का डिस्टेंस हुआ 100 लैम्ब, S2P का डिस्टेंस हुआ 193 लैम्ब, दोनों का फर्क कितना है 93 लैम्ब। So path difference at this point is 93 wavelengths, that is 93 lambda. So this point P must be bright. और कौन से नंबर का ब्राइट बैंड है, उसी नंबर का स्टूडेंट्स, 93 लैम्ब अगर पाथ डिफरेंस है तो ये 93rd ब्राइट बैंड ही है। अगर 49 लैम्ब आपका पाथ डिफरेंस है तो 49th ब्राइट बैंड है। अगर 150 लैम्ब है तो इट इज 150th ब्राइट बैंड। दैट्स अ ग्लोरी ऑफ दिस और इजी पार्ट ऑफ ब्राइट बैंड्स का कंडीशन। पाथ डिफरेंस जितना टाइम्स ऑफ लैम्ब रहेगा होल नंबर, वो होल नंबर ही आपका नंबर ऑफ ब्राइट बैंड यहाँ पे होता है। डार्क बैंड के लिए ऐसा नहीं है, डार्क बैंड के लिए आपको याद रखना है n-0.5 into लैम्ब, तो इट विल बी 17.5 लैम्ब और 85.5 लैम्ब, इट विल बी दिस 0.5 लैम्ब के टर्म्स में आएगा। यू कैन हैव 39.5 लैम्ब, यू कैन हैव 671.5 लैम्ब, 171.5 लैम्ब, लेकिन 0.5 लैम्ब ही रहेगा हमेशा। सो दिस is the path difference for dark band। तो इसमें इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 17.5 को, I can write it as 18 minus 0.5। इसको कैसे लिख सकता हूँ 86 minus 0.5। तो ये जो भी नंबर है उसका आगे अगर मैंने राउंड ऑफ किया तो वो आपका नंबर ऑफ डार्क बैंड आपको मिलेगा। मतलब 17.5 है तो दिस मस्ट बी 18th डार्क बैंड, 85.5 है तो इट इज 86th डार्क बैंड। तो ये दो वेव्स जो यहाँ पे मिल रहे हैं, रिमेंबर ये डायग्राम हमेशा यहाँ पे रखना है। ओके व्हेनेवर आई से अ ब्राइट बैंड या डार्क बैंड, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए अच्छा दो वेव्स S1 S2 से आया, P पॉइंट पे मिला, फिर वो P पॉइंट मिला, मेरा ब्राइट बैंड है वहां पे। ओके सो अगर डार्क है तो वो ये पाथ डिफरेंस कैरी करेगा। सो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस ये है 17.5 लैम्ब और मे बी 85.5 लैम्ब। तो अगर 17.5 लैम्ब है तो P must be 18th डार्क बैंड, 85.5 लैम्ब है तो इट must be 86th डार्क बैंड। सो ये हो गया how to identify a bright or dark band and what is the number of that bright or dark band। okay now remember one thing from this, nth dark band always appears before nth bright band। what I said, nth bright dark band always appears before nth bright band। देखिए सेकेंड ब्राइट बैंड इधर है, उसके पहले सेकेंड डार्क बैंड आ चुका है। वैसे ही आप अगर आगे जाओगे 10th ब्राइट बैंड पे तो उसके पहले 10th डार्क बैंड हो चुका रहेगा। सो nth डार्क बैंड ऑलवेज अपीयर्स बिफोर nth ब्राइट बैंड। तो n आप कोई भी बोलो, अगर आप बोलो 17th ब्राइट बैंड तो 17th डार्क उसके पहले आ चुका है। 71st ब्राइट बैंड तो 71st डार्क बैंड उसके पहले ही आ चुका है। या फिर ऐसा बोलो कि उस नंबर का ब्राइट बैंड आपका बाद में आएगा। ओके सो दिस इज हाउ nth ब्राइट एंड डार्क बैंड आर प्रेजेंट, दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई देम। एंड नाउ द पाथ डिफरेंस, वेज इन विच पाथ डिफरेंस आर गिवन। एक तो ये तरीका हो गया कि आपको ऐसे दिया जाएगा, डायरेक्टली 93 लैम्ब बोलेंगे या वर्ड्स में देंगे 93 वेवलेंथ्स, तो वो वेवलेंथ्स की जगह पे आपको लैम्ब लिखना है। ये एक तरीका हो गया। ओके देयर आर टू मोर वेज टू प्लेस दिस, उसमें से भी एक मैंने आपको अभी बोल दिया है कि ये जो मिला है ना 93 लैम्ब, वो कैसे मिला, ये 100 लैम्ब है, ये 193 लैम्ब है, फिर इन दोनों का फर्क लेके ये। तो समटाइम्स दे गिव यू S1P S2P और फिर उन दोनों का डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा। मे बी दे गिव यू दिस एज 6.5, S2P एज 6.65, तो दोनों का फर्क हो गया 0.15 सेंटीमीटर में।
तो ये आपका पाथ डिफरेंस हो गया। सो इस तरीके से आपको पाथ डिफरेंस निकालना पड़ सकता है अगर उन्होंने दोनों पाथ्स अलग अलग दिए तो। इसके अलावा और एक तरीका है इस पाथ डिफरेंस को देने का इन टर्म्स ऑफ एंगल, उसके ऊपर से काफी क्रूशियल क्वेश्चन वो पूछते हैं। लेट अस सी दैट नाउ। फॉर दिस लेट अस ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम S1 at A, from S1 to A I mean, on this line S2P or rather on this path S2P। देखो S1P और S2P ऐसे दो पाथ है, दोनों पाथ सेम नहीं है, पाथ डिफरेंस है। तो वो पाथ डिफरेंस क्या है ये जानने का और एक तरीका हम लोग देख रहे हैं। सो इफ आई ड्रॉप S1A as a perpendicular on S2P, then S1P and AP, from this point A now, if you look to the right, then these two distances are approximately same, because ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये काफी छोटा है। So S1P and AP are almost same। इसीलिए अगर आप S1P और S2P का डिफरेंस ऑब्टेन करना चाहते हो तो वो डिफरेंस लगभग ये हो गया। So this is your path difference between S2P and S1P। कैसे? S1P और AP ये दोनों सेम है, तो इन दोनों में फर्क तो यही हुआ ना S2A। हाँ, so now what is this S2A? It is D sin theta। S2A कैसे मिलेगा मुझे? It is D sin theta। अच्छा, how do I get this students? ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है इसकी वजह से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये S1 S2 डिस्टेंस स्मॉल d हाइपोटेन्यूस है। अगर d हाइपोटेन्यूस है और ये थीटा एंगल है तो थीटा का जो ऑपोजिट साइड है S2A दैट विल बी sin थीटा इनटू द हाइपोटेन्यूस। सो इट इज d इनटू sin थीटा, दैट्स इट। अभी ये S2A जो है वही आपका पाथ डिफरेंस है। सो पाथ डिफरेंस का और एक तरीका आपने को मिल गया स्टूडेंट्स, एंड इट इज d sin थीटा। नाउ आई एम कमिंग टू दैट क्रूशियल क्वेश्चन। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आपने इसको पहले कभी किया ही नहीं है तो आपको वो डिफिकल्ट लग सकता है। एग्जाम में इसके ऊपर पूछते हैं। Now what can be the maximum value of this path difference? Maximum value of path difference कितना हो सकता है? PD। This can be maximum equal to D। देखो, in any equation whenever you have sin cos, तो अगर आपको उस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आपको उस साइन या उस कॉस की जगह पे 1 रखना पड़ेगा। तो अगर आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वो तभी होगा जब साइन थीटा 1 आएगा, मतलब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। सो साइन थीटा 1 थीटा 90 जब भी होगा तभी पाथ डिफरेंस कितना बनेगा? d। ये उसका मैक्सिमम वैल्यू है। सो पाथ डिफरेंस का मैक्स वैल्यू कैन बी स्मॉल d। व्हाट इज स्मॉल d? डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज इज द मैक्सिमम पाथ डिफरेंस यू कैन हैव। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसके लिए पहले ये देखते हैं कि ब्राइट बैंड्स के लिए पाथ डिफरेंस अपना क्या होता है। पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट बैंड कैन बी n लैम्ब इन जनरल, मतलब फर्स्ट ब्राइट बैंड के लिए 1 लैम्ब, सेकंड ब्राइट बैंड के लिए 2 लैम्ब, थर्ड ब्राइट बैंड के लिए 3 लैम्ब। एज वी हैव अ डिस्कशन ऑलरेडी हैड ऑन इट, हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस नंबर का वो ब्राइट बैंड है उतना टाइम्स लैम्डा ये आपका पाथ डिफरेंस होता है। एंड वाइस वर्सा कि अगर पाथ डिफरेंस आपका 3 लैम्ब है तो वो थर्ड ब्राइट बैंड है, पाथ डिफरेंस आपका 5 लैम्ब है तो वो फिफ्थ ब्राइट बैंड है। बट व्हाट इज द मैक्सिमम पाथ डिफरेंस दैट वी कैन हैव? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेज। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, लैम्ब आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, माइक्रोवेव रीजन वाला दिया है, थोड़ा बड़ा वाला वेवलेंथ, एंड d इज 5 सेंटीमीटर। अगर d 5 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स तो ये आपका मैक्सिमम पाथ डिफरेंस हो गया। आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड हाउ मेनी मैक्सिमा आर प्रेजेंट इन दिस इंटरफेरेंस पैटर्न, जिसमें लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट 3 सेंटीमीटर का दिया है एंड डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर। तो केवल इन दोनों से हम लोग टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा पॉसिबल ये फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर लैम्ब 3 सेंटीमीटर है फर्स्ट ब्राइट बैंड के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा? 1 लैम्ब, 1 into 3 3। सेकेंड ब्राइट बैंड के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा? 2 लैम्ब, 2 into 3 6 सेंटीमीटर। तो सेकेंड ब्राइट बैंड 2 लैम्ब 2 into 3 6 सेंटीमीटर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 2 लैम्ब ये जो पाथ डिफरेंस हो गया ये इस d को क्रॉस कर गया, एंड d इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस दैट यू कैन हैव। तो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस आपका 5 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि उससे ज्यादा पाथ डिफरेंस पे आपको कोई बैंड्स मिलेंगे ही नहीं, उससे कम
मतलब उसके अंदर ही आपको नंबर ऑफ ब्राइट बैंड्स मिलेंगे या इवन डार्क भी मिलेंगे। यहाँ पे ब्राइट पूछा है, तो अगर आपको इसमें नंबर ऑफ ब्राइट बैंड्स पूछा तो 1 लैम्प 3 सेंटीमीटर, 2 लैम्प 6 सेंटीमीटर डजंट सेटिस्फाई कंडीशन, तो 2 लैम्प पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या पॉसिबल है? सिर्फ 1 लैम्प। मतलब कितना ब्राइट बैंड पॉसिबल हुआ? एक ही ब्राइट बैंड पॉसिबल हुआ, लेकिन वो कहाँ पे? इस CBF सेंट्रल ब्राइट बैंड या फ्रिंज के ऊपर ये एक ब्राइट बैंड मेरा पॉसिबल हुआ। लेकिन हम लोग को ये पता है कि जब भी दो वेव्स यहाँ से इस साइड में जा रहे हैं ऊपर, वैसा नीचे भी जाएगा, तो ऐसा ही एक ब्राइट बैंड आपका नीचे भी पॉसिबल है। तो कितने ब्राइट बैंड्स हो गए? 2। लेकिन सेंटर में भी क्या अवेलेबल है? ब्राइट ही अवेलेबल है। तो कितने ब्राइट बैंड हो गए? 3। सो विद दिस वेवलेंथ एंड दिस सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेस, an interference pattern on the screen will give you 3 maxima, 3 bright bands at the max. उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। So this is how you can also find any number of bright or dark band. अच्छा, इसमें dark band पूछो तो भी आ सकता है ना। अभी अगर एक bright band आपको इधर मिल रहा है, तो एक bright band से पहले एक dark band already हो चुका है। We had a discussion on this. So when you have 3 bright bands here, there will be 2 dark bands as well. So with this configuration, interference pattern will have 3 bright bands, 2 dark bands, maximum उससे ज़्यादा नहीं। See, this is how the tricky question I was talking about. So path difference को d sin theta ये express करते हुए maximum value path difference का d हुआ, with this condition how many bright और dark bands, ये एक tricky question आपका हो सकता है। दूसरा, इसी के ऊपर based वो ऐसा भी एक question आपको दे सकते हैं जिसमें they'll give you in the question the value of lamp and value of d। तो वेवलेंथ अगर आपको दिया हुआ है 2000 एंगस्ट्रॉम एंड सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेज इज 5000 एंगस्ट्रॉम, ये भी एंगस्ट्रॉम में दे सकते हैं। अगर एंगस्ट्रॉम में है तो मतलब यू कैन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 एंड गेट इट इनटू मीटर, बट यहाँ पे उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो, जो पहले तरीके से किया हम लोगों ने, नंबर ऑफ ब्राइट बैंड्स फाइंड किया, इवन डार्क बैंड, वैसा ही तरीका, उसके जैसा ही इक्विवेलेंट और एक तरीका है। वो क्या है? देखो, n लैम्प इज इक्वल टू d sin थीटा, ये मैं कर सकता हूँ। ब्राइट बैंड्स के लिए कभी भी आप PD, पाथ डिफरेंस इज d sin थीटा ना, इस डायग्राम से, तो पाथ डिफरेंस इज d sin थीटा, बट ब्राइट बैंड्स के लिए n लैम्प होता है पाथ डिफरेंस। सो n लैम्प इज d sin थीटा, इसमें से sin थीटा आप निकाल लो। सो sin थीटा इज n लैम्प अपॉन d। तो जो मैंने आपको पहले कंडीशन बोला कि वो d इज द मैक्सिमम वैल्यू, उसी को दूसरे तरीके से कैसे सेटिस्फाई करेंगे? देखो, अगर sin थीटा इज n लैम्प अपॉन d, तो n को वैसे ही रखो। लैम्प कितना है मेरा? 2000 और d कितना है मेरा? 5000। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा। तो 2/5, अभी ये हो गया मेरा sin थीटा का वैल्यू। अभी ये sin थीटा का वैल्यू आपका n पे डिपेंड करेगा। तो आपने क्या करना है? n क्या है? नंबर ऑफ ब्राइट बैंड्स। तो आप n का वैल्यूज डालते जाओ, 1 2 3 ऐसा। तो अगर n को आप 1 रखते हो तो ये राइट साइड क्या होगा? 2/5 मतलब 0.4। तो कैन sin थीटा इज इक्वल टू 0.4? यस। अगर n को 2 रखते हो तो 2 2 4, 4/5, 4/5 is 0.8। So can sin theta be 0.8? Yes। अगर n को 3 रखते हो, 3, तो 3 2 6, 6/5 1.2। Can sin theta be equal to 1.2? Never। sin theta का मैक्सिमम वैल्यू है 1। तो आपको क्या समझा इसमें से कि ये जो कंडीशन मैंने ऑब्टेन किया, इसमें sin थीटा का वैल्यू जब तक 1 से छोटा है तब तक ब्राइट बैंड्स पॉसिबल है। एक बार वो ये रेशियो, ये पूरा जो कैलकुलेशन है, ये 1 को क्रॉस कर जाएगा तो उसके आगे नंबर ऑफ ब्राइट बैंड्स पॉसिबल नहीं होगा। सो नंबर ऑफ ब्राइट बैंड्स अगर आपको फाइंड करना है, उसमें से डार्क भी मिल जाएंगे, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। n का वैल्यू 1 2 3 डालो। यहाँ पे कैसा n 2 तक अपने को मिला, 2 to the 4/5, मतलब 2 ब्राइट बैंड्स पॉसिबल है पैच। लेकिन 2 ब्राइट बैंड्स पॉसिबल है मतलब वो एक साइड का हुआ, दूसरे साइड में और 2 ब्राइट बैंड्स आएंगे और सेंटर में एक ब्राइट बैंड ऑलरेडी है। सो व्हेनेवर यू गेट 2 ब्राइट बैंड्स फ्रॉम दिस इक्वेशन, एक्चुअली योर टोटल नंबर ऑफ ब्राइट बैंड्स इज 5, क्योंकि 2 नीचे के साइड में रहेंगे और एक सेंटर का रहेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नाउ कि आपको इस एक ही पाथ डिफरेंस से हम लोग कितने सारे क्वेश्चंस अलग अलग बना रहे हैं, और ये थोड़ा सा ऑफ बिट हो गया स्टूडेंट्स। आपने अब तक प्रोबेबली जो किया है वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला है, बट यू कैन एक्सपेक्ट सच ब्रेन टीजर्स। ओके, अच्छा, इसमें 2 कंडीशंस और आता है फॉर बाइक्रोमेटिक लाइट। ये तो मोनोक्रोमेटिक का बात हो गया, मतलब एक ही कलर का लाइट जा रहा है। रेड कलर है तो ये दोनों भी रेड कलर के ही रहेंगे। अगर आपने इंसिडेंट किया ब्लू कलर तो ये दोनों ब्लू कलर के ही रहेंगे, माने दोनों वेव्स एक ही कलर के, एक ही वेवलेंथ के होते हैं। लेकिन अगर आपने पहले रेड कलर इंसिडेंट किया, फिर यहाँ पे आपको एक पैटर्न मिला,
फिर ब्लू कलर इंसिडेंट किया, आपको और एक पैटर्न मिला। लेकिन रेड कलर का अगर इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे रेड कलर का सपोज मेरा फोर्थ ब्राइट बैंड है, तो ब्लू कलर के साथ उसी पोजीशन पे सेम डिस्टेंस पे ब्लू कलर का क्या मुझे फोर्थ ब्राइट बैंड ही मिलेगा? नहीं, रेड कलर का जहां पे फोर्थ ब्राइट बैंड है उसी पोजीशन पे आपको ब्लू कलर का फोर्थ ही ब्राइट बैंड नहीं मिलेगा, ब्लू कलर का कोई अलग नंबर का बैंड मिलेगा। और ये कैसे फाइंड करेंगे? उसका शॉर्टकट है n1 lam1 इज इक्वल टू n2 lam2। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि रेड कलर मतलब वेवलेंथ आपको कुछ दिया रहेगा 8000 के आसपास, उसका फोर्थ ब्राइट बैंड है, तो कोई दूसरे कलर का कौन से नंबर का ब्राइट बैंड उधर आएगा। अच्छा, ब्राइट डार्क कुछ भी हो सकता है, जनरली ब्राइट पूछते इसलिए मैं ब्राइट बता रहा हूं, लेकिन ब्राइट बोला ना तो ये n1 इंटू आपका होल नंबर लेना है आपने। लेकिन अगर डार्क पूछा तो आपको n1 इंटू को n-0.5 सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे अगर बोला कि विद रेड कलर यू आर गेटिंग फोर्थ डार्क बैंड, तो आप n1 की जगह पे 4 नहीं लिखोगे स्टूडेंट्स, आप 4 - 0.5 माने 3.5 लैम लिखोगे। अच्छा, ये फॉर्मूला हम लोग को कैसे मिला है कि अगर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आप रेड कलर का nth ब्राइट बैंड ऑब्टेन करते हो तो उसी पोजीशन पे दूसरे कलर का कोई दूसरे नंबर का ब्राइट बैंड आपको मिलेगा। तो आपने xn को अगर इक्वेट किया, xn का फॉर्मूला क्या होता है ब्राइट बैंड के लिए? n लैम d by d। तो अगर आप n लैम d by d ये दो बार लिखते हो, मतलब लेफ्ट में आप लिखोगे n1 लैम 1 d by d इज इक्वल टू n2 लैम 2 d by d। d by d मतलब कैपिटल D अपॉन स्मॉल d दोनों साइड में। तो हम लोगों ने सिर्फ वेवलेंथ बदला है, ये कैपिटल D स्मॉल d नहीं बदला है स्टूडेंट्स। तो सेटअप आपने चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ वेवलेंथ बदला है। तो उसकी वजह से एक ही पोजीशन पे दो अलग अलग ब्राइट बैंड्स, या मे बी ब्राइट एक का ब्राइट एक का डार्क, या दोनों का डार्क, ऐसा आपको कॉम्बिनेशन मिल सकता है। बट एक कलर माने एक वेवलेंथ का जो नंबर का ब्राइट बैंड या डार्क बैंड वहां पे है, तो दूसरे वेवलेंथ का सेम नंबर का आपको कभी नहीं मिलेगा। दैट इज माय पॉइंट। तो आपने इस फॉर्मूला से d by d को कैंसिल आउट करके n1 lambda इक्वल टू n2 lambda ये ऑब्टेन कर लिया। n1 n2 की जगह पे ब्राइट या डार्क के हिसाब से होल नंबर लिखना है या -0.5 करके लिखना है, आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी मच एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सो फॉर बाइक्रोमैटिक लाइट at a given position, bichromatic means two different wavelengths, you get two different number of bright or dark bands according to this equation. One more shortcut is, अगर ये जो सेटअप है YDSE का, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, इस पूरे सेटअप को अगर मैं किसी मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है उसमें इमर्स कर दूं, मे भी पूरा सेटअप अगर पानी में वाटर में इमर्स कर दिया सपोज, तो उस केस में जो बीटा आपका मिलेगा, बीटा मतलब बैंड विड्थ, व्हाट इज बीटा? बैंड विड्थ। तो न्यू बैंड विड्थ विल बी ओरिजिनल बैंड विड्थ अपॉन म्यू, न्यू बैंड विड्थ विल बी ओरिजिनल बैंड विड्थ बीटा अपॉन म्यू। मतलब एयर में जब ये सेटअप था तो आपको इस स्क्रीन पे जो बैंड्स मिले और उनके बीच का जो स्पेसिंग मिला, सक्सेसिव बैंड्स का स्पेसिंग, उसको हम लोग बीटा बैंड विड्थ ऐसा बोलते हैं। एयर में अगर बैंड विड्थ बीटा है तो उसी सेटअप को पानी में या किसी और मीडियम, किसी और लिक्विड में इमर्स करने के बाद जो नया बैंडविड्थ मिलेगा वो बीटा बाय म्यू रहेगा। अच्छा, ये कैसे आया? बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम डी बाय डी। और एक शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया था, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू सम मीडियम देन वेवलेंथ बिकम्स 1 अपॉन म्यू टाइम्स। तो अगर वेवलेंथ ये लैम 1 अपॉन म्यू टाइम्स हो रहा है, आपने ये डी और डी चेंज नहीं किया है, फॉर द सेम सेटअप बट इमर्स्ड इन वाटर। ओके, सेम सेटअप का मतलब है डी डी सेम है, तो लैम आपका 1 अपॉन म्यू टाइम्स हो जाएगा, इसलिए बीटा भी 1 अपॉन म्यू टाइम्स हो जाएगा। सो दिस इज अनदर tricky question apart from bichromatic light for change of beta when entire setup is immersed in medium of refractive index mu. Regarding bandwidth, the question that can be asked will be in this way. पहले bandwidth का फॉर्मूला फिर से रिकॉल करते हैं, लैम d by d. Now you know the meaning of each and every term. इसमें इस फॉर्मूला में तीन वेरिएबल्स हैं, लैम, कैपिटल D, स्मॉल d. Now you better know all the three. तो बीटा माने बैंडविड्थ चेंज होने के तीन पॉसिबिलिटीज क्या हुए? Either you will change the distance between source and the screen, that is this capital D, मतलब आप इस D को चेंज करोगे, या आप वेवलेंथ को चेंज करोगे, या फिर आप डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस इसको चेंज करोगे। अच्छा,
अगर आपने ये कैपिटल डी को चेंज किया, माने ये डिस्टेंस चेंज किया, ये डिस्टेंस कैसे चेंज कर सकते हैं? आप इस स्क्रीन को या तो सोर्सेस की तरफ लेके जाओ या सोर्सेस से दूर लेके जाओ। तो क्वेश्चन देखो बैच, इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो एमसीक्यूज है ना, दे आर वेरी सिंपल टू एनालाइज एंड सॉल्व, बट द ओनली स्कैरी पार्ट इज द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। बहुत बड़े बड़े लेंथ के क्वेश्चन होते हैं जिसकी वजह से आपका पढ़ने का ही मन नहीं होता है। सो प्लीज वैसा नहीं करो। ओके, वंस यू स्टार्ट रीडिंग, उस रीडिंग में आपको मैक्सिमम क्या मिलेगा पता है? ये सेटअप का ही एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअल जो आपको पूछा गया है ना, वो बहुत छोटे पार्ट में दिया रहेगा, लेकिन वहां तक जाते जाते आपको सेटअप पूरा दिमाग में आने के लिए लेंथ ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाता है। सो प्लीज डोंट हैव एनी सच फोबिया ऑफ लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा, सो कैपिटल डी को अगर आप चेंज करोगे तो कैसे? या तो इस स्क्रीन को सोर्स की तरफ मूव करोगे, मतलब डी कम हो जाएगा, या फिर इस स्क्रीन को सोर्सेस से दूर मूव करोगे। क्वेश्चन में प्रोबेबली ऐसा दिया जाएगा कि स्क्रीन इज मूव्ड टुवर्ड्स द सोर्सेस बाय 50 सेंटीमीटर। तो कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज दिस 50 सेंटीमीटर? ये आपका डेल्टा डी है, क्योंकि आपने डी को बदला है। ओके, तो उसमें लिए बहुत बार स्टूडेंट्स D1 फाइंड करो, D2 फाइंड करो, फिर डिफरेंस लो। अरे क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है कि स्क्रीन इज मूव्ड टुवर्ड्स द सोर्सेस बाय 50 सेंटीमीटर, तो 50 इज डायरेक्टली डेल्टा डी। स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द सोर्सेस बाय 20 सेंटीमीटर, तो 20 इज डायरेक्टली डेल्टा डी। ओके, तो वो लेके आपको चेंज, हाँ लेकिन चेंज इन बैंडविड्थ फाइंड करना है तो ही ये शॉर्टकट है। ओके, अगर नया बैंडविड्थ चाहिए तो आपको वो D2 निकालना ही पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे विल आस्क यू चेंज इन बैंडविड्थ, और इसमें से वो परसेंटेज चेंज भी पूछते हैं। तो परसेंटेज चेंज के लिए क्या करेंगे? डेल्टा बीटा को आप बीटा से डिवाइड करो, ओके, और इंटू 100 करो। मतलब क्या? लैम और डी तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या? डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। सो परसेंटेज चेंज इन द बैंडविड्थ विल बी डेल्टा बीटा अपॉन बीटा इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन ये डी, आप इससे डिवाइड कर रहे हो ना, इंटू 100। वैसा ही वेवलेंथ का, वेवलेंथ अगर बदला, जैसे मैंने अभी बोला आपको कि रेड कलर से ये मिल रहा है तो ब्लू कलर से क्या मिलेगा, तो वेवलेंथ बदला, दो अलग अलग वैल्यूज आपका वेवलेंथ को दिया, वेवलेंथ का दिया रहेगा। सो गेट डेल्टा लैम फ्रॉम दैट, फ्रॉम डेल्टा लैम डी एंड डी आपको सेम सेटअप है दिया रहेगा, सब्स्टिट्यूट दैट डेल्टा लैम हियर एंड गेट डेल्टा बीटा। परसेंटेज चेंज पूछा तो फिर से वही डेल्टा बीटा बाय बीटा इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा लैम बाय लैम इंटू 100। सो चेंज इन डी एंड चेंज इन वेवलेंथ, चेंज इन डी मतलब स्क्रीन को मूव किया टूवर्ड्स और अवे, चेंज इन वेवलेंथ मतलब कलर ही बदल देंगे, और चेंज इन स्मॉल डी मतलब सोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है, सोर्सेस को या तो नजदीक लेके आएंगे एक दूसरे के या फिर दूर लेके जाएंगे एक दूसरे से। तो उसमें आपका ये फॉर्मूला आएगा। देखो यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में है। तो आप जब भी डेल्टा बीटा फाइंड करोगे तो आपको लैम और डी कॉमन निकल जाएगा, लैम एंड डी। जो भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ वो मैं पहले लिख रहा हूँ। इसमें डी चेंज किया था तो लैम अपॉन डी साइड में लिया, इसमें लैम चेंज किया था तो डी अपॉन डी साइड में लिया, इसमें स्मॉल डी बदल रहे हैं तो लैम और कैपिटल डी साइड में रखो कांस्टेंट। फिर स्मॉल डी का जो चेंज है उसका ऐसा आएगा डेल्टा डी अपॉन D1 D2। ओके, क्योंकि आप बीटा का डिफरेंस लोगे ना, तो बीटा का डिफरेंस लेने के लिए आपको ये डी नीचे है तो 1 अपॉन D1 माइनस 1 अपॉन D2 ऐसा आएगा कॉमन लेने के बाद। सो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट दिस। तो चेंज इन बैंडविड्थ व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस is increased or decreased can be found by this formula. So these are some of the questions, tricky questions or tricks that they play in the question of interference of light. The only scary part is, students, the length of the question. Please don't get scared about that. वो length scary है but only if you allow it to. आप उसको quietly पढ़ो, आपको पढ़ते समय ही ये डायग्राम इमेजिन होगा। अगर आप प्रैक्टिस अभी ऐसे कर रहे हो ना तो बराबर आपको वो आएगा, एंड देन यू कैन एनालाइज एज वेल। देयर आर फ्यू मोर ट्रिक्स लाइक दिस, वी विल सी देम आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन।